नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित वेदांत परिभाषा है, जिसके ग्रंथकार श्री धर्मराज अध्वरेंद्र हैं। पुस्तक अंग्रेज़ी अनुवाद है मूल का। अनुवादक स्वामी माधवानंद जी हैं। पुस्तक का मूल्य 80 रुपये है। अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित। द वेदांत परिभाषा इज एन एपिस्टेमोलॉजिकल वर्क ऑन शंकर वेदांत एज इंटरप्रेटेड इन द विवर्ण स्कूल ऑफ अद्वैत वेदांत। और विवर्ण स्कूल के जो संस्थापक हैं वो पद्म पदाचार्य हैं। पंचपदिका ग्रंथाती है उनकी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनुअल ऑफ द वेदांत फिलॉसफी एंड इज मोस्ट वाइडली read book on the subject, next to Sadananda Yogendra's Vedant Sar. On account of its brevity and lucidity, this exposition has commended itself to the readers. The English translation of the Vedant Paribhasha will introduce the epistemology of the Shankar Vedant to such readers as are not adept in philosophical Sanskrit. कुल पृष्ठ 18 पृष्ठों में विषय सूची, इंट्रोडक्शन, फॉरवर्ड है और 243 में ग्रंथ है। वेदांत परिभाषा ऑफ धर्मराज अध्वरेंद्र, translated and annotated by Swami Madhavanand, with a foreword by Dr. S.N. Dasgupta, CIE, MA, PhD, DLIT. ये फॉरवर्ड है, इसमें काफ़ी क्रिटिकल हैं इस ग्रंथ को लेके श्री एस.एन. दासगुप्ता। कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। The Vedanta Paribhasha is an epistemological work on Shankar Vedanta as interpreted in the Vivarna school. The epistemological implications of the Panchpadika of Padmapad as interpreted in the Vivarna had already been collected and worked out by Ramadwai in his Vedanta Kaumudi. The work has not yet been published. When we compare the contents of the Vedanta Kaumudi with those of Vedanta Paribhasha of Dharmaraj Adhvarendra, the indebtedness of the latter appears to be so colossal that its claim to originality vanishes. तो इनके अनुसार वेदांत कौमुदी पर ही पूर्णतः आधारित है और इसको ओरिजिनल भी शायद नहीं कहा जा सकता वेदांत परिभाषा को। ये श्री एस.एन. दासगुप्ता के अनुसार है और वेदांत कौमुदी वैसे अभी पब्लिश नहीं हुई है। इस टिप्पणी के ऊपर इंट्रोडक्शन में भी टिप्पणी की गई है, वो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगा। There are also here and there traces of confusion which his son vainly tried to justify or to explain away in his commentary on the Vedanta Paribhasha. On the whole, this epistemological compendium, on account of its brevity and lucidity of exposition, has commended itself to the readers of Shankar Vedanta. It is also interesting to notice that in accordance with the scheme of epistemology formulated in the Vivarna, the perceptual situation is taken in a realistic manner. Parts of it, however, are not fully developed and important questions which could be raised regarding it have not been anticipated. This may be regarded as hypercriticism, ये वो स्वयं कह रहे हैं, but it cannot be denied that there is much scope for elaborating the views of Vivarna school on epistemological matters. अब इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन का कुछ अंश भी मैं पढ़ के आपको सुना दूँ। The Vedanta Paribhasha by Dharmaraj Adhvarendra is a very important manual of the Vedanta philosophy and is the most widely read book on the subject, next to Sadananda Yogendra's Vedant Sar. इस ग्रंथ पे भी हम वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। वेदांत के अंदर जो अद्वैत वेदांत की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित हिंदी अनुवाद है वो। द ऑथर हु सीम्स टू हैव फ्लरिश्ड इन द 17th century was a reputed scholar of southern India, as we know from the introductory verses to the Paribhasha, यानी कि इस ग्रंथ, as also from similar verses by his son and commentator. And we have ample evidence from the body of the book that of the two main branches of the Sankara school of Advaita Vedanta, founded by Padma Padacharya and Acharya Vachaspati Mishra, respectively, our author belonged to the former. In his discussions, he has adopted the method and phraseology of Navya Nyaya introduced by Gangesh Upadhyay in the 14th century. The first six chapters of परिभाषा, आप इस ग्रंथ को, वैसे तो कोई भाग नहीं है इसमें, मतलब पूरी ग्रंथ एक ही 8 अध्यायों की है, लेकिन अगर विषय वस्तु देखें तो 2 भागों में विभक्त की जा सकती है। प्रथम भाग जो पहले 6 अध्याय हैं वो, और द्वितीय भाग जो अंतिम के 7वां और 8वां जो 2 अध्याय हैं लास्ट के वो। The first 6 chapters of the Paribhasa are devoted to establishing the means of valued knowledge from the Vedantic standpoint. तो उसमें बेसिकली जैसे शायद मेरे लिए तो न्याय पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ज़्यादा आसान था। जैसे न्याय में नॉलेज का सोर्स क्या है, किन किन चीज़ों को आप नॉलेज का सोर्स मान सकते हैं, तो उस पर चर्चा है और
उसी के हिसाब से फिर दूसरे जो दर्शन है जैसे कि न्याय और वैशेषिका हो गया मुख्यतः, उनको काउंटर किया गया है और क्या क्या सही सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं उसको स्टैब्लिश किया गया है। ये पहले 6 अध्यायों में मुख्यतः यही विषय है। The first 6 chapters of the Paribhasha are devoted to establishing the means of valid knowledge from the Vedantic standpoint, and as such often contain refutations of other systems of philosophy, particularly Nyaya Vaisheshik. Being to some extent of a polemical character, these chapters are rather abstruse for the beginner. तो ये समझने में भी थोड़े कठिन हो जाते हैं। जैसे ये दर्शन भी जब आप दर्शनों का अध्ययन करेंगे तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो वो यहाँ भी है। हालांकि अंग्रेज़ी अनुवाद को अधिक से अधिक आसान बनाने की चेष्टा की गई है, मगर फिर भी जिनको सब्जेक्ट मैटर से पहले एक्सपोजर नहीं मिला हुआ है थोड़ा सा समझने में कठिनाई आएगी। जिनको बेसिक एक्सपोजर है, जैसे मैंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिर भी मेरे लिए भी समझना उतना आसान नहीं है, टेक्निकल है, बार बार दोहरा के एक ही सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है उसकी मीनिंग को समझने के लिए। बट वंस ही हैज़ असेंडेड दिस रगड स्टेप्स, he is ushered into the realm of Vedanta proper in the last 2 chapters of the book, where he will find a delightful compendium of the essential doctrines of the philosophy, embodying its subject matter and aim. उसके बाद फिर ये जो पहले 6 चैप्टर पे जो सोर्स ऑफ नॉलेज है उसके ऊपर जो चर्चा की गई है वो इंट्रोडक्शन में पूरा यहाँ दिया गया है। तो ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये किसी भी नवीन पाठक या श्रोता के लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ फिर से ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारी आ रही है। A glance at the table of contents will give an idea of the nature and variety of the topics discussed in the book. We refrain from adverting to them here. It will be noticed that the author has bestowed a good deal of attention on the accuracy and comprehensiveness of the definitions, inserting one qualifying epithet after another into them for this purpose, to which not a little of the stiffness of books of this kind is due. वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं जिसमें मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं समझना। He has faithfully presented in a nutshell the traditional views on important questions relating to Vedanta, and it is seldom that he has put forward any views of his own, as he had once done while discussing the perception of internal objects, and again under implication, Lakshana. Often referred to great authorities like Padmapad, Prakashatma Yati and Vachaspati Mishra in his book, and his debt to these masters is indubitable. As to how far the contributions of हाँ यहाँ पे फिर वो टिप्पणी कर रहे हैं जो श्री एस.एन. दासगुप्ता जी की टिप्पणी थी कि ये ओरिजिनल इसको नहीं कहा जा सकता है, वेदांत कॉमेडी से ही ये ऑलमोस्ट लिया गया है सब कुछ। As to how far the contributions of our author are original, or the question of his close indebtedness to any antecedent author, for example Ram Advay, as Dr. Dasgupta asserts, can be decided only when the work in question has been published. We leave the issue open and trust that future research scholars will be in a position to settle the matter conclusively. That he has eminently succeeded in producing a handy volume for a general reader is a fact that will be evident from all who study the book. तो ये ओरिजिनल है कि नहीं ये तो फिर आगे रिसर्चर्स जो है वो डिसाइड करेंगे। हालांकि ये जो इंट्रोडक्शन है ये भी काफ़ी पुराना है, ये भी अप्रैल 1942 में लिखा गया था, तो उसके बाद से वेदांत कौमुदी अभी प्रकाशित हुई है कि नहीं ये मैंने चेक नहीं किया है, ये भी एक बार मैं चेक कर लूँगा। और फिर रिसर्चर्स का या जो भी अभी एकेडमिशियंस हैं उनका इस बारे में क्या व्यू है। लेकिन उन सब के बावजूद भी जैसा लिखा गया है, वेदांत सार के बाद वेदांत परिभाषा जो है उस सबसे अधिक अध्ययन की हुई पुस्तक है वेदांत पे, और जनरल रीडर के लिए ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है वेदांत के ऊपर, वेदांत के एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर भी, और फिर वेदांत क्या है उसके ऊपर भी एक जनरल इंट्रोडक्शन ये अच्छा प्रोवाइड करता है। The popularity of Vedanta Paribhasha is testified by the number of commentaries written on it and available in print, beginning with Vedant Shikhamani by the author's son, Ramakrishna Advarin, which again has got a gloss named Vedant Maniprabha by Amar Das. Other published commentaries on the book are Artha Deepika by Shivadatt, Vedant Paribhasha Prakashika by Ped Dikshit, the Ashubodhani by Pandit Krishnanath, Nyay Panchanan, Paribhasha Prakashika by M.M. Anant Krishna Shastri, as well as one by Pandit Jivanand Vidyasagar. All these have been consulted with profit in preparing the translation. और इसके पहले इंग्लिश में सिर्फ देयर वाज ओनली वन book was that by Principal Arthur Venice of Sanskrit College Banaras, which appeared with notes serially in The Pandit from 1882 to 1885. ऐसा प्रतीत होता है कि द पंडित उस समय कोई ऐसी इंडोलॉजिकल मैगजीन थी जो पब्लिश होती थी, अब शायद नहीं होती है।
Advantage has been taken of the above edition as well as Bangla version of the book by श्री शरद चंद्र घोषाल। फिर इस संस्करण को प्रकाशित करने में किन किन लोगों से सहायता मिली है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। और ये लास्ट एक 4th एडिशन का फॉरवर्ड यहाँ दिया गया है जो 1972 का ये भी लिखा हुआ है। उस समय 3rd एडिशन आया था कि प्रिंटेड आफ्टर long been run out, we are now bringing the 4th edition. We are sorry it could not be printed earlier due to unavoidable circumstances. ट्रांसलिट्रेशन गाइड दिया गया है चूँकि ग्रंथ अंग्रेज़ी में है, तो जो भी हिंदी के शब्द प्रयोग किए गए हैं या संस्कृत के शब्द प्रयोग किए गए हैं तो उनका सही उच्चारण रोमन लिपि में जो लिखे गए हैं उस किस प्रकार से करना है उसके लिए होता है ट्रांसलिट्रेशन गाइड। यहाँ से प्रारंभ हो रहा है चैप्टर 1, जैसा कि चैप्टर 1 से 6 तक वही सोर्सेज ऑफ राइट नॉलेज जो है उन्हीं के ऊपर डिस्कशन है। तो 6 सोर्सेज माने गए हैं। तो ये जो पहले 3-4 पेज दिख रहे हैं वो इंट्रोडक्टरी नेचर के हैं। इंट्रोडक्शन, लिबरेशन, द सुप्रीम एंड ऑफ लाइफ और वैलिड नॉलेज एंड इट्स मीन्स। एक बार जब वैलिड नॉलेज एंड इट्स मीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो हर अध्याय में एक मीन्स को डिस्कस किया जा रहा है। तो ये जो ऊपर हेडिंग दी गई है परसेप्शन को, तो ये परसेप्शन पहला मीन्स है और इसके बाद जो शेष अध्याय है चैप्टर 1 का वो पूरा का पूरा परसेप्शन के ऊपर है। वैसे ही दूसरा अध्याय इन्फरेंस के ऊपर है, तीसरा कंपैरिजन के ऊपर है, चौथा वर्बल टेस्टिमनी के ऊपर है, पांचवा प्रिजम्पशन के ऊपर है। यहाँ रिजम्पशन छप गया था, पी मिसिंग है, प्रिंटिंग एरर है। प्रिजम्पशन के ऊपर है। छठा अध्याय नॉन एप्रीहेंशन के ऊपर है। 143वें पृष्ठ से उसका अंतिम टॉपिक प्रारंभ हो रहा है। 150वें पृष्ठ पे फिर 7वां और 8वां जो वेदांत के ऊपर है फोकस कर रहा है। ये भी वेदांत के ही पर्सपेक्टिव से इन 6 सोर्सेज ऑफ नॉलेज पर डिस्कस कर रहे हैं। पहले 6 अध्याय पूरी तरह वेदांत के ही पर्सपेक्टिव से हैं और अन्य जो दर्शन हैं या उनको रेफ्यूट कर रहे हैं। उसके बाद फिर वेदांत पे टॉपिक चला जाता है चैप्टर 7 में सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेदांत, टू-फोल्ड वैलिडिटी, मीन्स ऑफ नॉलेज, एसेंशियल एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रह्मण, कॉस्मोलॉजी, इट्स ऑर्डर, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, पंचमहाभूत, सुपीरियर एंड इंफीरियर सटल बॉडीज़, ओरिजिन ऑफ वेरियस वर्ल्ड्स एंड बॉडीज़, 4 काइंड ऑफ कॉस्मिक डिल्यूजन, प्रलय जो है विभिन्न प्रकार के, ऑर्डर ऑफ कॉस्मिक डिल्यूजन, इन सब पे चर्चा है। वाई द स्क्रिप्चर्स डील विथ क्रिएशन एंड मेडिटेशन, व्यूज़ अबाउट कॉन्शियसनेस इज गॉड एंड इंडिविजुअल सेल्फ, द मीनिंग ऑफ द वेकफुलनेस, द व्यूज़ अबाउट फंक्शन ऑफ मेंटल स्टेट, ड्रीम एंड प्रोफाउंड स्लीप, आइडेंटिटी ऑफ मीनिंग्स ऑफ दैट एंड दो, तत्वमसि। फिर एम ऑफ वेदांत जो है वो अंतिम चैप्टर है। यहाँ एब्रिविएशंस हैं, कई सारे पुराणों से भी इसमें यहाँ पर कोट किया गया है। विष्णु पुराण से, बृहद नारदीय पुराण से, आपको शिव पुराण से, और फिर विभिन्न उपनिषद हैं, संहिता हैं, ब्राह्मण हैं, भगवद गीता है, ब्रह्मसूत्र हैं, कई जगहों से रेफरेंसेस लेके दिए गए हैं। यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही डिटेल्ड फुटनोट दिए गए हैं और फुटनोट इसलिए इतने सारे फुटनोट हैं कि हर पेज के अंत में नहीं है, हर श्लोक के बाद फुटनोट दे दिया गया है उस श्लोक से संबंधित। नहीं तो फिर नीचे फिर बहुत ज़्यादा फुटनोट हो जाते हैं और ये स्टाइल जो है प्रेजेंटेशन का, उससे सहायता भी मिलती है कि आप उसी श्लोक से संबंधित, उसी एक्सप्लेनेशन से संबंधित फुटनोट तुरंत रेफ़र कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ छोटा ही है, फुटनोट का और भी छोटा है, लेकिन इतना नहीं कि पढ़ने में कठिनाई हो। मूल अंग्रेज़ी यहाँ दिया गया है, मूल संस्कृत श्लोक यहाँ दिए गए हैं, फिर अंग्रेज़ी का जो अनुवाद है, भावार्थ है, वो नीचे दिया गया है। ब्रैकेट में एडिशनल एक्सप्लेनेशन के लिए चीज़ें दी गई हैं और फिर उसी श्लोक से संबंधित जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं या फिर रेफरेंसेस हैं वो वहीं पे दे दिए गए हैं। तो फुटनोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और फुटनोट्स ही फिर व्याख्या को बढ़ाते हैं। देख सकते हैं हर श्लोक के नीचे ये छोटे फॉन्ट में रेफरेंसेस और एक्सप्लेनेटरी नोट्स दोनों ही चीज़ें दी गई हैं। देखिए यहाँ भी हर जगह प्रिंटिंग का ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। कहीं कहीं छपाई थोड़ी हल्की हो रही है, लेकिन इतनी नहीं कि पढ़ने में कठिनाई हो। ये देखिए यहाँ भी बहुत ये बड़े बड़े फुटनोट्स भी दिए गए हैं कई जगहों पे। ये सारे फुटनोट्स हैं। तो इस प्रकार से ये 8वां अध्याय प्रेजेंट किए गए हैं रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में। 229वें पृष्ठ पे ग्रंथ समाप्त हो जा रहा है। उसके बाद ग्लॉसरी दी गई है। कई सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत के ही अंग्रेज़ी में लिख के दिए गए हैं, तो उनके लिए ग्लॉसरी दी गई है अंग्रेज़ी में उनका अर्थ समझाने के लिए। ग्लॉसरी जो है पृष्ठ संख्या 230 से प्रारंभ होकर, बहुत ज़्यादा बड़ी ग्लॉसरी नहीं है। जो भी शब्द प्रयोग किए गए उनके तो दे ही दे गए हैं। 235 तक 5 पृष्ठों की है और फिर एक इंडेक्स है।
पुराण उपनिषद के अलावा और भी कई ग्रंथ हैं। तत्व प्रदीपिका चित्त सुखी नाम से जो जानी जाती है चित्त सुखाचार्य की, उसको भी कोट किया गया है। वेदांत शिखामणि जो हमने देखा भाष्य ही है। वेदांत कल्पतरु जो अमलानंद स्वामी द्वारा भामती के ऊपर ग्लॉस है, इन सब से भी रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो ये थी कुछ जानकारी रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित धर्मराज अध्वरींद्र रचित वेदांत परिभाषा के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।